So good evening, everyone. I hope, am I audible? Yes, Kunal, yes. Thank you. Thank you. Please mute yourself. Thank you so much. We'll be just starting the webinar in next 5 minutes. Good evening, sir. Good evening. Please mute yourself. We'll be just starting in webinar in next 2 minutes. So this is going to be a bit interactive session. I would like you all to participate me in this webinar. I would like you to write your questions in the chat box. Hi, Kunal. Hi. Hi. Please mute yourself. Thank you so much for joining. Yeah. So it is exactly 6 p.m. now. We'll be starting this webinar in next 2 minutes. Okay. I'm just starting off with this webinar. This webinar is Unlock the Secret to Scale Up Your Legal Practice. And in this webinar, we are going to cover 3 key points. That is, first, FMS, that is being used by million-dollar companies to scale up their practice. Second is how to acquire new clients and how to retain old clients. The third point would be goal setting and the value system. So, okay. I hope you are all safe and healthy. Just hold on. I hope you are all safe and healthy. And I would just like you to, I would just like you to really acknowledge yourself for being here so that you can take your practice to a scalable model. Would that be okay if I share a brief introduction about myself? Okay, thank you. So my name is Kunal Madan. I'm married to a lawyer wife and a father to a naughty boy, and I'm a boxing enthusiast and a budding traveler. Professionally, I had a mid-sized law firm in Delhi with a team of around 20 associates, and I've been in the practice for 13 years now. I've attended many international business seminars and workshops and read many business books on them. My vision is to create a McDonald's of legal industry. And I'm also the author of the upcoming book, Run Your Company, Not Your Case. So this was a brief introduction about myself. And yes. So please quickly just assess the problems faced by the legal fraternity and the lawyers. Can you just write few problems faced by you or by your fellow lawyers in the chat box so that I am able to address that in this particular webinar? Please type that in the chat box. So this is an interactive session, guys. Please write in the chat box what all the problems have you faced till now and what stops you to build a scalable practice model.
I would just like to know your feedback and what kind of problems have you faced in the chat box. Okay. 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 So Ms. Zenith says clients go for window shopping. Client handling is for fees is one part which I'm obviously going to address. Legal practice is very personalized. It needs my presence and complex drafting arguments and also time for the crunch in the yes. So these are all the problems faced by lawyers in journal over here. And I would really like to address all these concerns over here. What does scalability mean? Scalability means, for me, the scalability means growing in terms of the number of clients you handle, and it should be profitable. That can be only done when you have your team which is committed and competent, and your systems are simple and sustainable, and your strategy is magnetic and profitable. So I have really segregated into three parts. One is your team that is committed and competent. Then your system, which is simple, which should be simple and sustainable. And the strategy should be magnetic and profitability. You should be able to pull your clients toward yourself rather than you following up for any kind of sales or any kind of thing. So your team should be competent and competent, committed and competent. So just quickly write in a chat box. Do you find incompetent or committed people? Do you find it in your team, or do you find the people you interview or as such you find them committed and competent people? आपको क्या कहीं पे मिलते हैं? Quickly write that in the chat box. क्या आपके पास committed और competent people हैं या आपको मिलते हैं? Just quickly write that in the chat box. No, exactly. So कभी भी आपको committed और competent बच्चे, young lawyers, आपकी टीम का पार्ट देने आपको कभी नहीं मिलते. वो आपको डेवलप करने पड़ते हैं. आपको कभी भी एक कॉम्पिटेंट और कमिटेड बंदा मिले, प्लीज हायर देम, हग देम, एंड उनको अपनी टीम का पार्ट बनाइए. उनको कभी मत छोड़िए. और 99% आपको कमिटेड और कॉम्पिटेंट बच्चे नहीं मिलेंगे. आपको डेवलप करने पड़ेंगे. मार्क माय वर्ड, आपको डेवलप करने पड़ेंगे कॉम्पिटेंट और कमिटेड टीम. अब द सेकंड इशू इज कि आपको कमिटेड और कॉम्पिटेंट लोग डेवलप कैसे करें. उनके लिए ऐसा कैसा सिस्टम बनाएं जो कि सिंपल हो, सस्टेनेबल हो. स्ट्रैटेजीज पे हम बाद में आएंगे. सो अभी मैं दूसरे एक पार्ट पे आता हूँ. मैंने काफी बारी देखा है प्रैक्टिस के अंदर हमें ये कहा जाता है कि जी आपके बिना नहीं चलती. क्लाइंट हमें ही मांगते हैं कि आप ही आओ, आप ही ने हमारा मैटर करना है, आप ही ड्राफ्टिंग भी आप ही करो, सब कुछ आप करो. तो हाउ इज दैट पॉसिबल कि उसको फिर स्केलेबिलिटी मॉडल पे कैसे लेके आए, सिस्टम को ऐसे कैसे डेवलप करा जाए ताकि आपकी टीम कमिटेड और कॉम्पिटेंट बने और आप ग्रोथ और प्लानिंग पे ध्यान दो. अपनी ग्रोथ प्लानिंग, नए क्लाइंट कैसे एक्वायर करे जाएं, क्या स्ट्रैटेजीज लगाई जाएं उनके मैटर को जीतने के लिए. आप डे टू डे वर्क से बाहर हो जाओ. सो उसके लिए लेट्स सपोज कि हम लेट्स सी एक कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैसे फंक्शन करता है. कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास उसका एंटायर स्टाफ होता है, सारा का सारा स्टाफ होता है जो उसके लिए सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क काम करता है. देखिए, काम को ना हमेशा 4 एंगल्स में या 4 पार्ट्स में डिवाइड करा जाना चाहिए. वन इज अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, द अदर इज इम्पोर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, द थर्ड पार्ट इज not important, not urgent. The fourth quadrant is urgent but not important. So
आप जब अपने काम को इन 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तो आप ये देखिए आपका होगा, जब आप अपने काम को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, जब आप अपने काम को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ मेंबर्स ने अभी ज्वाइन किया है। आप जब अपने काम को 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 1 इज अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। अर्जेंट एक इम्पोर्टेंट काम की लिस्ट आप अलग बना लीजिए, नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट काम की आप एक लिस्ट अलग बना लीजिए, इम्पोर्टेंट और नॉट अर्जेंट काम की लिस्ट आप एक अलग बना लीजिए, और नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट काम की आप लिस्ट एक अलग बना लीजिए। सो आपको अपना हर काम 4 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, और आपका जो फोकस होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट काम पे होना चाहिए। बाकी आपको सारा का सारा काम डेलीगेट करना चाहिए, और वो डेलीगेट करने का क्या साइंस है, क्या सिस्टम्स होने चाहिए उस काम को डेलीगेट करने के चाहिए, ताकि आपकी जो टीम है वो कॉम्पिटेंट बन जाए और आपके साथ कमिटेड रहे, और आप फ्री होके अपनी ग्रोथ पे ध्यान लगाएं, सेल्स पे ध्यान लगाएं, नए क्लाइंट को एक्वायर करने में ध्यान लगाएं, पुराने क्लाइंट्स को सिक्योर करने में ध्यान लगाएं। सो हमारा जो सारा सिस्टम का बेस है वो है आपकी टीम को कमिटेड और कॉम्पिटेंट बनाना, आपको फ्री करके सेल्स पे ध्यान लगाना, और आपका जहां पर्सनल अटेंशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट काम के ऊपर। सो वो इम्पोर्टेंट काम हमारी प्रैक्टिस में लेट्स सपोज कि किस तरह से होने चाहिए। सो वो इम्पोर्टेंट काम होने चाहिए या तो मैटर में स्टेक इतने ज्यादा हो जहाँ पे आपकी पर्सनल अटेंशन होनी चाहिए हो रिक्वायर्ड है। लेट्स सपोज 100 करोड़ का मैटर है, 500 करोड़ का मैटर है, 10 करोड़ का मैटर है, नॉट फॉर द स्मॉल मैटर्स। या टेक्निकलिटीज ऐसी हैं जहां पे आपकी पर्सनल अटेंशन की जरूरत है, जहां पे आपको पता है कि आपकी टीम शायद उन टेक्निकलिटीज को हैंडल नहीं कर पाएगी। तो जहां पर ये दो सिचुएशन आती हैं वहां पे तो आपकी पर्सनल अटेंशन बहुत जरूरी है, लेकिन जहां पर ये दो चीजें नहीं है वहां आपकी टीम इतनी कमिटेड और कॉम्पिटेंट होनी चाहिए ताकि वो उस सिस्टम से काम करे और आप फ्री हो जाए। सो उस सिस्टम को डेवलप करने का नाम है एफएमएस। एफएमएस में आने से मैं पहले एक चीज और मॉडल के ऊपर बात करना चाहूंगा जी। आपको ऐसा सिस्टम जब डेवलप कर रहे हो तो यू हैव टू थिंक इन अ इंक्लूसिव मैनर। इंक्लूसिव मैनर का मतलब है कि आपको सबको साथ में इंक्लूड करना है, सबका फायदा साथ में इंक्लूड करना है, आपको विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी है। विन विन सिचुएशन आपके टीम के लिए होनी चाहिए, टीम को एक्सपोजर मिलना चाहिए और जितने पैसे वो एक्सपेक्ट करते हैं वो उनको उतने पैसे मिलने चाहिए। दिस इज नंबर 1, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। सेकंड विन विन सिचुएशन मॉडल के अंदर आपका जो क्लाइंट बेस है, आपका जो क्लाइंट बेस है उनको उनको उनके मैटर की वैल्यू फॉर मनी मिलनी चाहिए और उनको रिजल्ट्स मिलने चाहिए। चाहे आपका सिस्टम कैसा भी है, दे आर बॉर्डर्ड अबाउट देयर रिजल्ट्स, दे आर बॉर्डर्ड अबाउट कि उनको वैल्यू फॉर मनी क्या मिल रही है उनके पैसे की। सो वैल्यू फॉर मनी विन विन सिचुएशन क्लाइंट के लिए हो गई, आपकी टीम के लिए विन विन सिचुएशन हो गई कि उनको एक्सपोजर मिल गया, उनको पैसे मिल गए। आपके लिए विन विन सिचुएशन ये हो गई कि आपकी प्रैक्टिस का एक लेवल अलग बन गया। आपकी प्रैक्टिस का एक लेवल कैसे अलग बन गया? आपके अपीयरेंस की स्टेक्स हाई हो गए, आपकी अपीयरेंस के स्टेक्स हाई हो गए, आप ज्यादा टेक्निकल मैटर्स में जाना शुरू हो गए और आप रिलेटिवली यू आर वर्किंग ऑन योर प्रैक्टिस नॉट इन योर प्रैक्टिस। लुक, देयर इज अ बिग डिफरेंस। जब व्हेन यू आर वर्किंग इन योर प्रैक्टिस यू आर इन्वॉल्व इन एवरीथिंग, एवरीथिंग, इवन द स्मॉल मैटर की हाँ जी फाइलिंग भी देखनी है, हाँ जी आज ये क्लाइंट की ये क्वेरी है यही देखनी है, ये भी मैं ही करूंगा, आज उस फाइलिंग में वो ऑब्जेक्शन है तो वो भी जाके मैं ही रिमूव करूंगा, आज कोई मिसलेनियस शेयरिंग है तो वो भी मैं ही देखूंगा, आज कोई किसी क्लाइंट का कुछ ऑर्डर कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ तो वो भी मैं ही देखूंगा। सो इवेंचुअली यू आर इन्वॉल्व इन एवरीथिंग। So you are working in your practice, and when you are working on your practice, तो इसका मतलब है आपका सिस्टम काम कर रहा है, आपकी टीम काम कर रही है, आप रिलेटिवली फ्री बैठे हुए हो, आपका सिस्टम इस तरह से काम कर रहा है कि आपका क्लाइंट भी हैप्पी है,
आपकी टीम भी खुश है और आप सिर्फ मेन मैटर्स पे फोकस कर रहे हो। सो मेरा ये पूरा मॉडल विन विन सिचुएशन वाला और आपकी टीम को कमिटेड और कॉम्पिटेंट बनाने वाला एक मॉडल है एफएमएस। मेरे पास इसका ये सोल्यूशन है। मुझे इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करे हुए कम से कम 5 साल हो गए। मैं अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ। 95% मैटर्स में मैं अपियर नहीं होता, ना मैं ड्राफ्ट करता हूँ उसको, ना मैं देखता हूँ क्या ड्राफ्टिंग हुई है। एंड 95% मैटर्स में 90% मैटर्स में मुझे वो रिजल्ट्स आते हैं जो मैं चाहता हूँ, जो मैंने क्लाइंट को कमिट कर रखे हैं। हाउ इज दैट पॉसिबल? अब आते हैं एफएमएस पे। एफएमएस की फुल फॉर्म है फ्लो चार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। अब आपको क्या करना है, आपको ये एनालाइज करना है जब आपका क्लाइंट पहली बार दरवाजे से अंदर आता है और जब वो दरवाजे से बाहर जाता है, जब तक उसका केस खत्म नहीं होता, तब आपके ऑफिस में क्या प्रोसेस फॉलो होता है, उस प्रोसेस को आपको एक फ्लो चार्ट के अंदर पहले बनाना है। उस फ्लो चार्ट में बनाने के बाद हर स्टेप को सिस्टमैटिकली मॉनिटर करना है और हर स्टेप की मॉनिटरिंग के अंदर आपको 4 चीजें ध्यान में रखनी है। देखिए, अगर ये 4 चीजें आपने 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 नहीं ध्यान में रखी, देन यू वुड बी आउट ऑफ द सिस्टम और ये सिस्टम ऐसा रिवर्स मारेगा दैट यू वुड बी इन ट्रबल। तो 4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट क्या है? 1 इज हर स्टेप पे व्हाट इज टू बी डन, बाय whom इट इज टू बी डन, कौन करेगा उस स्टेप पे, क्या करेगा, कौन करेगा। थर्ड, हाउ इट इज टू बी डन, कैसे करेगा वो उसको। फोर्थ, बाय व्हेन इट इज टू बी डन। आपको हर मैटर पे, हर चीज पे एक टारगेट डेट भी सेट करनी है। अब मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और एक फ्लो चार्ट दिखाऊंगा और उसका एक मॉनिटरिंग सिस्टम दिखाऊंगा कि आपको कैसे करना है। आई विल बी जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू गाइस, जस्ट होल्ड ऑन। क्या मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? ओके, सो लुक, फ्लो चार्ट कुछ इस तरह का होता है, आप देख सकते हैं। स्टार्ट से लेके एंड तक आपको सारे के सारे स्टेप्स इसमें नोट डाउन कर रखे हैं। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट फॉर, ये किसी और का फ्लो चार्ट है, मैंने तो सिर्फ सैंपल के लिए उठाया। और जो सोल्यूशन है, मैं अपने ऑफिस का आपको फ्लो चार्ट, फ्लो वर्क फ्लो बताता हूँ। स्टेप 1 है न्यू क्लाइंट मीटिंग, टेकिंग ब्रीफ हिस्ट्री, फॉलोड बाय मार्किंग इट टू पर्टिकुलर एसोसिएट। फिर वो क्लाइंट उसको फिर मार्क होने के बाद एसोसिएट पर्टिकुलर्स लेता है, उस ड्राफ्टिंग करता है। ड्राफ्टिंग के बाद रीचेकिंग होती है, रीचेकिंग के बाद क्लाइंट अप्रूवल के लिए जाता है। क्लाइंट अगर कुछ सजेस्ट करता है चेंजेस के लिए, फिर हम रीड्राफ्ट करते हैं। फिर उसके बाद फाइलिंग होती है या डिस्पैच होता है। सो कुछ इस तरह से मेरे ऑफिस का मॉडल चलता है। और ये इसके 4 कंपोनेंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। पहला है व्हाट इज टू बी डन, दूसरा है हु विल डू इट, तीसरा है हाउ इट इज टू बी डन, चौथा है बाय व्हेन इट इज टू बी डन। देखिए, अगर आपको स्केलेबल मॉडल बनाना है तो आप सारी दुनिया अकेले नहीं जीत सकते। अगर आपको दुनिया जीतनी है और स्केलेबल मॉडल इतना स्केलेबल बनाना है कि एक मिड साइज लॉ फर्म बनानी है, एक बड़ी लॉ फर्म बनानी है, जहां आप एक वर्ड है मिशन टू मिलियंस, कि आपको लाखों लोगों को सर्व करना है। सो वो आप अकेले नहीं कर सकते। यू नीड अ टीम बिहाइंड यू, डोंट यू? यू नीड योर बैकबोन्स बिहाइंड यू। आपकी टीम कमिटेड और कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कि दे शुड बी एबल टू डू इट। तो ये 4 कंपोनेंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। और एक बात मान के चलिए, एक बात मैं और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। डोंट गो फॉर प्रोटेक्शन। अभी हाउ इट इज टू बी डन में मैं आपको हम लोग एक बड़ी डिटेल कॉन्वर्जेशन करेंगे कि ऐसा क्या सिस्टम हो सकता है जिसमें बिना आपके, जो आप ड्राफ्ट कर रहे हो वैसा ही ड्राफ्ट बिल्कुल प्रिपेयर हो पाए 90% एक्यूरेसी के साथ, सो दैट आपके 5 या 10 मिनट लगे और
हाउ पे हम अभी एक बड़ी डिटेल कॉन्वर्सेशन करते हैं, लेकिन डोंट गो फॉर परफेक्शन. परफेक्शन टू मी इज अ मिथ. इट्स कंप्लीटली मिथ. आप किसी भी एडवोकेट के पास जाएं और दूसरे एडवोकेट को ड्राफ्ट दिखाएंगे, वो कुछ ना कुछ अपना ऐड कर देगा कि नहीं यार इसमें ये पॉइंट भी चाहिए. आप थर्ड वन के पास जाओगे, वो कुछ और ऐड कर देगा. फोर्थ वन के पास जाओगे. सो परफेक्शन दुनिया में कुछ नहीं होती. इट्स अ मिथ. इवन इफ यू गेट 90% फ्रॉम दिस फ्लो चार्ट मॉनिटरिंग शीट. और दूसरी चीज, इस फ्लो चार्ट मॉनिटरिंग शीट को आपको ऑपरेट नहीं करना, ये चीज भी ध्यान में रखिएगा. इस फ्लो चार्ट मॉनिटरिंग शीट को आपको ऑपरेट नहीं करना. इस फ्लो चार्ट मॉनिटरिंग शीट को ऑपरेट करना है एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट. एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रखिए जो इस फ्लो चार्ट मॉनिटरिंग शीट को ऑपरेट करे. और इस फ्लो चार्ट मॉनिटरिंग शीट को फ्लो चार्ट बनाने के बाद आपको शीट में कन्वर्ट करना है. एक एक्सेल शीट में कन्वर्ट करना है जिसका हर पैरामीटर आपकी वो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ट्रैक करती रहेगी कि इस फ्लो चार्ट मॉनिटरिंग शीट को इस एफएमएस का स्टेप बाय स्टेप हम लोग गाइड करके ट्रैक कर रहे हैं. अब मैं अपनी स्क्रीन दोबारा एक बार आपसे शेयर करूंगा और मैं अपना फ्लो चार्ट आपको दिखाऊंगा कि मेरा अपना फ्लो चार्ट मॉनिटरिंग शीट कैसी है और कैसे चलती है. जस्ट होल्ड ऑन. So this is my flowchart monitoring sheet. This is my flowchart monitoring sheet. देखिए न्यू क्लाइंट मीटिंग भी है इसमें, टारगेट डेट भी है इसमें, कैश प्रोक्योरमेंट भी है, ड्राफ्टिंग भी है, चेकिंग भी है, रीड्राफ्टिंग भी है, पोस्टेज भी है, कंप्लीशन डेट भी है, क्लाइंट को कॉपी जाना है वो भी है, व्हाट इज टू बी डन भी है, हु इज टू बी डन भी है, हाउ इट इज टू बी डन भी है, व्हेन इट विल बी डन ये भी है. एंड यू कैन सी कि किस तरह से मैंने मीटिंग ली, उसके बाद आगे मार्क करा, उसके बाद हर चीज पे यस यस यस, सेंड टू क्लाइंट, सेंड टू क्लाइंट. हर चीज, everything is being tracked, and it is not by me. And it is not by me. It is by my executive assistant, and that executive assistant take care of all these things. So अभी एक चीज बड़ी क्लियर हो गई कि इस फ्लो चार्ट मॉनिटरिंग शीट को जब आप इंप्लीमेंट करेंगे, देन आपका फॉलोअप जो आप फॉलोअप करते हैं, हाँ जी ये काम हुआ नहीं हुआ, ये काम हुआ नहीं हुआ, ये ड्राफ्टिंग हुई नहीं हुई, ये ड्राफ्टिंग हुई नहीं हुई, वो बर्डन आपके सर से उतर जाएगा. अब नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं कि इसके बाद क्या. अब हाउ पे कैसे काम करें, 90% एक्यूरेसी कैसे लेके आए, कि जैसे आप ड्राफ्ट करते हो वैसा ही आपकी टीम ड्राफ्ट करे. सो ये बड़ा ना एक की है कि जैसा आप ड्राफ्ट करते हो, जैसे आप काम करते हो, जैसे आप सोचते हो, वैसे आपकी टीम सोचे. ये एक this can be a backbone of your office and the scalability model. Let's see that. देखिए अब आपको क्या करना है. हाउ पे अब हम आते हैं कि हाउ इट इज टू बी. हाउ में आपको अपने ऑफिस में जितने तरह के आप मैटर्स करते हो, लेट्स सपोज आप डोमेस्टिक वायलेंस के मैटर करते हो, पहले आपको आधा पौना घंटा लगा के सोचना है कि जब कोई क्लाइंट मेरे पास आता है डोमेस्टिक फाइनेंस का, तो मैं क्या सोचता हूँ, मैं उससे क्या क्या क्वेश्चंस पूछता हूँ, मैं किन किन चीज़ों का ध्यान रखता हूँ, मैं क्लाइंट को ये क्या क्या चीज़ें पूछता हूँ कि हाँ जी कब आपकी शादी हुई थी, कब स्पेसिफिक डेट पे आपको उसने मारा था, अच्छा उसके फेसबुक में कुछ क्या क्या है, उसका इनकम लेवल क्या है, उसमें वो किसी और के साथ उसके रिलेशन तो नहीं है, उसका लिंक्डइन प्रोफाइल, उसकी इनकम, उसकी फोटोग्राफ्स, हमारा पीछे एमएलसी, मेडिकल डॉक्यूमेंट, क्या क्या चीजें हैं. जब आपका क्लाइंट उस पर्टिकुलर केस में आपके पास आता है, आप कैसे सोचते हो, उस सोच को आपको एक चेकलिस्ट में कन्वर्ट करना है. उस सोच को आपको एक चेकलिस्ट में कन्वर्ट करना है. हाँ जी ये मैं सोचता हूँ इस हिसाब से. फिर उसके बाद क्या करना है, चेकलिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद क्या करना है,
वैसा ही एक पुराना ड्राफ्ट उठाना है। और देखिए, लॉयर्स फ्रेटर्निटी में आई नो कि कट कॉपी पेस्ट का काम बहुत होता है, एंड कट कॉपी पेस्ट का काम बहुत होता है, एंड आई अंडरस्टैंड दैट उसमें कुछ गलत भी नहीं है। अभी उस कट कॉपी पेस्ट को मैं एक कंप्लीटली एक नेक्स्ट लेवल दे रहा हूँ। चेकलिस्ट आपके हर पैराग्राफ के साथ आपकी सोच और आपकी कमेंट उस कॉपी फॉर्मेट में, उस फॉर्मेट का आपके हर पैराग्राफ के साथ आपका कमेंट और कहाँ क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। एक चेकलिस्ट बन गई, ऊपर नीचे ड्राफ्ट आ गया। ड्राफ्ट के बाद हर पैराग्राफ के बाद आपकी कमेंट और आप किस तरह से सोचते हो, वो चीजें आपको जो है बिल्कुल ध्यान में रख के आपको फॉर्मेट तैयार करनी है, आपको चेकलिस्ट तैयार करनी है। जैसे आप ये काम करोगे, आपका हाउ पार्ट 90% खत्म हो जाएगा। कितने परसेंट खत्म हो जाएगा? 90% खत्म हो जाएगा। आपको आपका कोई भी, और इतना सिंपल रखना है उसको, इतना सिंपल रखना है उस चेकलिस्ट को कि 90% आपका कोई भी जूनियर जिसकी 6-8 महीने की प्रैक्टिस है, वो बैठे, वो उस ड्राफ्ट को देखे, उस चेकलिस्ट को देखे, क्लाइंट के साथ बैठे, उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग चले, उस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग आपकी कमेंट्स के साथ चले, एंड ही शुड बी एबल टू ड्राफ्ट 90% ऑफ द ड्राफ्ट। जब आपके पास एक 90% ड्राफ्ट आ जाएगा, तब आप क्या करेंगे? आप उस पे सिर्फ 5 या 10 मिनट लगाएंगे या 15 मिनट लगाएंगे उस ड्राफ्ट को पढ़ने में। परफेक्शन में नहीं जाना, मैं फिर बोल रहा हूँ। एंड मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका 99% बर्डन खत्म हो जाएगा। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। सो अभी हमने 2 पार्ट्स कवर कर लिए कि एक फ्लोचार्ट मैनेजमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, एक आपकी चेकलिस्ट हो गई, जिससे कि आपका फॉलोअप और आपका ड्राफ्टिंग पार्ट खत्म हो गया, साइड हो गया। देखिए, ये सिस्टम पहली बार में 100% शायद नहीं आने वाला। पहली बार में 100% हो सकता है आप शायद इसको इम्प्लीमेंट ना कर पाए, बट आई एम श्योर वंस यू इम्प्लीमेंट दिस, और हर चीज का ना, लेट्स सपोज हर चीज का एक फर्स्ट कॉपी होती है, तो दिस वुड बी योर फर्स्ट कॉपी। और इसके बाद आप धीरे 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 यू कैन टेक इट टू नेक्स्ट लेवल, यू कैन इम्प्रूव ऑन इट, यू कैन टेक इट टू सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। अब लेट मी कम टू कि नए क्लाइंट्स कैसे एक्वायर करेंगे, हाउ टू बिल्ड न्यू क्लाइंट्स। तो नए क्लाइंट्स कैसे एक्वायर करे जाएं, इसका एक बड़ा सिंपल सा मेथड है। आप पेन और पेपर ले लीजिए, और पेन और पेपर में आप ये देखिए कि आप पिछले 3 महीने में कितने नए लोगों से मिले हैं, और उन 3 महीने में जितने, लेट्स सपोज आप 100 नए लोगों से मिले हैं, 100 के 100 तो आपके प्रोस्पेक्ट्स ही होंगे, तो आपको नए लोग कितने मिले, उसमें से आपके कितने प्रोस्पेक्ट थे। लेट्स सपोज आप 100 नए लोगों से मिले और आपके 100 में से 10 प्रोस्पेक्ट निकले, और आपको ये भी देखना है कि आपकी कन्वर्जन रेशो क्या है। 100 नए लोगों से मिले, उसमें से 10 आपके प्रोस्पेक्ट थे, 10 के 10 आपके क्लाइंट नहीं बनने वाले, आपकी कन्वर्जन रेशो क्या है। तो आपको अपनी कन्वर्जन रेशो निकालनी है, देखनी है कि 10 प्रोस्पेक्ट आते हैं आपके पास, तो उसमें से कितने आपके क्लाइंट बनते हैं। तो लेट्स सपोज आपकी कन्वर्जन रेशो है 50%, तो 10 लोगों में से आपके 5 क्लाइंट बने। तो अगर आपने 2 महीने में 5 नए क्लाइंट्स ऐड करे हैं, तो इसका मतलब ये है, अगर आपका टारगेट 50 नए क्लाइंट्स का है, तो आपको कम से कम 1000 बंदे से मिलना पड़ेगा। सो इट डिपेंड्स कि आपको, सो व्हाट आई मीन इज, आपको अगर नए क्लाइंट्स चाहिए, तो आपको अपनी दुनिया के अंदर विजिबिलिटी दिखानी पड़ेगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना पड़ेगा, इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो दिस इज पॉइंट नंबर 1 अगर आपको नए क्लाइंट्स चाहिए तो।
आपको अपनी विजिबिलिटी दिखानी पड़ेगी, आपको ज्यादा नए लोगों से मिलना पड़ेगा, आपको अपनी कन्वर्जन रेशो पता होनी चाहिए कि आपकी कन्वर्जन रेशो क्या है। और नए लोगों से मिलने के लिए अब दूसरा सवाल आता है कि नए लोगों से कैसे मिले और कहाँ मिले। सो नए लोगों से मिलने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि रोटरी है, जैसे कि BNI है, जैसे कि तजुर्बा है, फिक्की है, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, एंड यू कैन एंगेज इन पब्लिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म। तो आपको अपनी नए लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन बढ़ानी है। एंड अब आपको नए लोग मिल गए, आपने नए लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया। नए लोगों से इंटरेक्शन के बाद आपको क्या स्टेप लेना है? आपको वहां पर अपने आप को पोस्ट नहीं करना, आपको अपने बारे में कुछ नहीं बोलना, आपको एज अ ह्यूमन बीइंग उनकी लाइफ में वैल्यू क्रिएट करनी है और इंटरेस्ट करना है। सो लुक, आपके पास कितने सेल्स कॉल आते होंगे, सर क्रेडिट कार्ड ले लो, सर बैंक लोन ले लो, सर दिस सर दैट। यू डोंट एंटरटेन देम। व्हाई डोंट यू एंटरटेन देम? बिकॉज दे आर सेल्समैन, दे आर selling themselves and they're boasting about themselves. So this is the human tendency. This is an art of influence. कि you when you have to sell yourself, you don't have to sell yourself. So you take interest in their life, you add value in their life. The moment you do that, सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा कि क्या हो रहा है उसके साथ. And the art of influence would start working. The art of influence would start working, my dear friends. The art of influence would start working in that sense. So, आपको जब भी मिलो अपने बारे में नहीं सोचना, अपने बारे में बोस्ट नहीं करना. टेक इंटरेस्ट इन देयर लाइफ, जस्ट ऐड वैल्यू. वो वैल्यू क्या हो सकती है? उनको सुनना भी एक उनके लिए वैल्यू हो सकती है. उनको कुछ अपनी इम्पोर्टेंट, उनके जो उनके लिए मैटर करती है इश्यूज के लिए कुछ ऐसी एडवाइस देना भी वैल्यू हो सकती है. या कुछ ऐसी वीडियो शेयर करना जिस जो वो चाहते हैं. जैसे मैं जो बुक पढ़ता हूँ, मैं कभी कभी उसका कंटेंट शेयर करता हूँ, हो सकता है जो रेलिवेंट हो उनकी परफॉर्मेंस के लिए, मैं वो भी शेयर करता हूँ. तो मैं ऐसे भी वैल्यू ऐड करता हूँ. मैं लीगल इन्फॉर्मेशन भी कभी कभी पास करता हूँ. मैं वीडियोस बना के भी फॉरवर्ड करता हूँ. लुक, यू हैव टू क्रिएट अ रिकॉल वैल्यू. आपको एक ऐसी रिकॉल वैल्यू क्रिएट करनी है जिससे कि सामने वाला प्रोस्पेक्ट या ह्यूमन बीइंग आपको मिले और आपको जिंदगी भर याद रखे. आपको ऐसी रिकॉल वैल्यू क्रिएट करनी है जिससे कि आप जिससे भी मिलो वो आपको जिंदगी भर ना भूले. रिकॉल वैल्यू आपको ऐसी स्ट्रॉन्ग क्रिएट करनी है. द मोमेंट यू डू दैट, माय डियर फ्रेंड, दैट इज गोइंग टू चेंज द गेम. एंड आई कैन स्वेयर दैट इज गोइंग टू चेंज द गेम. इट हैज चेंज फॉर मी, और मुझे लगता है कि आपके लिए भी ये गेम चेंजर रहेगी. सो अभी ये बात आ गई वैल्यू सिस्टम पे. सो हमारे पास सिर्फ प्रिसाइजली 6 मिनट लेते हैं. मैं क्विकली जो है गोल सेटिंग पे आता हूँ. ओल्ड क्लाइंट्स को कैसे रिटेन करता है, मैं 1 मिनट फटाफट उस पे लेता हूँ. एक ओल्ड क्लाइंट्स को कैसे रिटेन करना है, ओल्ड क्लाइंट्स के लिए भी एक रिकॉल वैल्यू आपको जनरेट करनी है. उनको आप लीगल न्यूज फॉरवर्ड कर सकते हैं, उनको एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हैं जिसमें कि जो उनके लिए हेल्पफुल है कंटेंट आप उनको दे सकते हैं. नो गुड मॉर्निंग, नो गुड नाइट, व्हाट्सएप पे इस तरह का स्टफ प्लीज मत शेयर करा करिए. नोबडी लाइक्स दैट, नोबडी रीड्स दैट, नोबडी वांट्स दैट. दैट्स अ क्रैप, कंप्लीट क्रैप. सो ऐड समथिंग व्हिच रियली ऐड वैल्यू इन देयर लाइफ, सो दैट वो आपकी रिस्पेक्ट करें. The moment they start respecting you, not as a salesman, not as a legal person, but as a person जो उनके लिए लाइफ में अपने लिए अगर आपने कुछ क्रिएट करा है तो आपको वो अपने बारे में then your network, जो आपका नेट है वो जब आपके लिए काम करना शुरू कर देगा, नेटवर्क जब आपका नेट आपके लिए काम करना शुरू कर जाएगा, देन आपकी प्रैक्टिस अपने आप स्केलेबल मॉडल पे आ जाएगी. तब आपको सोचना नहीं पड़ेगा आपके पास क्लाइंट्स कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं. सो उस नेट को वर्क करने के लिए आपको उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करनी ही पड़ेगी. देयर इज नो अदर वे कि आप पुराने क्लाइंट्स को कैसे एंगेज करो और नए क्लाइंट्स को कैसे एंगेज करो. सो ये वैल्यू एडिशन हो गया. अब मैं फटाफट आता हूँ कि गोल्स के ऊपर. देखिए, गोल्स के ऊपर what I want to share is, गोल जो होने चाहिए ना, आपका इंक्लूसिव गोल होना चाहिए.
और गोल के साथ लेट्स सपोज आपको अपनी 5 करोड़ की प्रैक्टिस करनी है, जब तक उस 5 करोड़ की प्रैक्टिस में आपका एक वाई नहीं जुड़ा होगा, क्यों करनी है आपको 5 करोड़ की प्रैक्टिस, 10 करोड़ कमाना है, क्यों कमाना है, जब तक आपके पास वो वाई नहीं जुड़ा होगा तब तक वो गोल जिंदगी में कभी अचीव नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अभी मैं एक बड़ी शॉर्ट स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। 2007 में इंडियन टीम वर्ल्ड कप हारी थी, धोनी को नया कैप्टन बनाया, धोनी ने सारी टीम को इकट्ठे बुला लिया, तो एक परफॉर्मेंस कोच को बुलाया, उसने बोला कि क्यों जीतना है वर्ल्ड कप, तो लगे रहे, कोई कहता है जी हमने अपनी कंट्री के लिए जीतना है, कोई कहता है हमने अपने लिए जीतना है, कोई कहता है हमने अपनी टीम के लिए जीतना है, कोई कहता है हमने अपना नाम बनाना है, हमने टीम का नाम बनाना है, हमने राष्ट्र का धंधा। सो ही सेड दिस इज क्रैप, एब्सोल्युटली क्रैप। सो 12 घंटे की शिद्दत के बाद किसी ने एक आंसर दिया कि हमें वर्ल्ड कप जीतना है सचिन के लिए, क्योंकि सचिन ने इतने हम देखते हुए बड़े हुए हैं और उसने कंट्री का बोझ उठाया है इतने साल, हमें वर्ल्ड कप जीतना है सचिन के लिए। द मोमेंट जैसे वो आंसर आया, रोंगटे खड़े हो गए सबके, सबकी आंखों में चमक आ गई, एंड इट वाज सेल्फलेस। सो ही सेड दिस इज योर वाई, इसके लिए खेलो। सो आपकी लाइफ में आपका जो गोल है, जब तक उसका वाई नहीं होगा तब तक माय डियर फ्रेंड्स यू आर नॉट गोइंग टू अचीव दिस, आई एम श्योर यू आर नॉट गोइंग टू अचीव दिस। So have your strong why, have your goals. Goals should be inclusive. आपकी टीम का भी गोल होना चाहिए कि वो कहाँ जाएं, किस तरह जाएं, कितना क्या वो अचीव करें। आपके क्लाइंट्स के लिए भी गोल होना चाहिए, आपका अपना पर्सनल गोल भी होना चाहिए। So I think the moment you have this, आपकी तीनों एस्पेक्ट्स कवर हो जाएंगे। So precisely, I really want to acknowledge you all for coming into this webinar. Abhi we are going to end this webinar in next 2 minutes, and abhi I am just authoring a book, Run Your Company Not Your Case, जिसमें मैंने skill, system और strategy, not only this FMS, not only this school setting, not only what I have just यहाँ पे मैंने जो भी शेयर करा है, इससे मैंने बहुत ज़्यादा चीजें शेयर करी हैं उस बुक के अंदर। I hope it would add value, and आप प्लीज क्विकली राइट इन चैट बॉक्स आपको ये कैसा लगा, और प्लीज मेरे साथ इस बारी शेयर जरूर करिएगा कि आपको इस वेबिनार से क्या मिला, कैसे मिला, एंड मैं अपने आप को और ज्यादा कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ अपनी फेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर और लॉयर फ्रेटर्निटी के लिए वैल्यू ऐड करने के लिए। प्लीज क्विकली राइट इन चैट बॉक्स सो दैट आई कैन कम टू नो कि व्हाट ऑल हैव यू, अभी आपको इस वेबिनार से क्या मिला और क्या, हाउ कैन please do share quickly on the chat box. We have less than a minute left. Thank you, Himakshi. Thank you. और आपके क्या takeaways थे? Please do let me know your takeaways as well. I would love to hear that. I would really love to hear that. Maybe my internet connection is slow. I am so sorry about it. Thank you. Any more comments? I would love to hear that. Thank you guys. Thank you so much for being a part of this session. And मुझे काफी motivation मिली है. This was my first webinar. Thank you so much to be a part of it. I would keep adding more webinars for my brothers. Thank you so much. Thank you so much.